Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So friends, today we are going to do question answers of the lesson Don't Be Afraid of the Dark. This is a poem. The poet of this poem is Ruskin Bond. And we have already read the poem and I have already explained it in Hindi, and you will get the link to watch the video in the description box. What do you understand from the poem Don't Be Afraid of the Dark? आप लोगों ने क्या समझा Don't Be Afraid of the Dark मीन्स अंधेरे से मत डरो लेसन से. The poem tells about the fear of darkness and how to overcome that fear. इस पोएम में हमें अंधेरा देखने के बाद मीन्स अंधेरा जब छा जाता है तो कैसे हम लोग डर जाते हैं. देखने कि हमें दरवाजा खोलने से भी डर लगता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए कहा गया है. और अंधेरे को आप बुराई के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. आप लोगों को बुराई से डटकर मुकाबला करने के लिए कहा गया है, ना कि डर के मारे छुप जाने के लिए कहा गया है. सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद द न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग. Let's start. Question number 1. Afraid. Meaning of this word is feeling fear. डर लगना. Example sentence. I am afraid of snakes. मुझे सांप से डर लगता है. She was afraid to go on the street. उसे स्ट्रीट में रास्ते में अकेले जाने में डर लगता है. Dark. With little or no light means अंधेरा. You should come home early or it will get dark. अंधेरा होने से पहले आप घर वापस आ जाओ. It's too dark to read here. यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ पढ़ना मुश्किल है. Rest. To relax. Take rest for a while on the couch. आप लोग कोच में ही रेस्ट कीजिए थोड़ी देर. आई नीडेड रेस्ट आफ्टर ए लॉन्ग वॉक. मैंने बहुत लंबी वॉक ले ली है, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए. हार्श. रफ और क्रूएल. हार्श यानी कि रफ होता है, क्रूएल होती है मीन्स जो हमें अच्छा नहीं लगता है. बहुत जोर का कोई साउंड हो जाए या गुस्से से कोई बात करे. He asked me to get out in a harsh tone. उसने बहुत ही रूड टोन में मुझसे बाहर जाने के लिए कहा. You should not be very harsh with the children. हमें अपने बच्चों के साथ बहुत सख्त नहीं होना चाहिए. Forever, always, हमेशा. Parents love their children forever. Parents जो हैं वे अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते हैं. I will stay with you forever. मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी. Troubles. Troubles यानी कि difficulty. Problems. Example sentences. There are many troubles in my family. मेरी फैमिली में बहुत सारे disturbances है, difficulties है. The doubt in my mind troubles me. जो डाउट मेरे मन में चलते हैं वो मुझे troubles करते हैं, difficulty create करते हैं. Cease. To come to an end. Cease यानी कि जो चीज end हो जाती है, खत्म हो जाती है. Example sentences. The government should cease the taxation. Government जो है taxation को cease कर देना चाहिए गवर्नमेंट को. Teacher should cease beating their student. टीचर को बच्चों को पीटने का जो काम है वो बंद कर देना चाहिए. Now question number 1. Reading is fun. What is the poem about? I have already told the answer. Answer. The poem is about how to not get afraid of the darkness. किस तरह से हमें डार्कनेस से कोई भी डर नहीं करनी चाहिए. Question number 2. What happens when the day is over? जब दिन बीत जाती है तब क्या होता है. Answer. Night comes when the day is over. रात हो जाती है जब दिन खत्म हो जाती है या ढल जाती है. What does the earth do when the day is over? जब दिन खत्म हो जाती है तो अर्थ क्या करती है. Answer.
The earth takes rest when the day is over. जब दिन पूरा हो जाता है तो अर्थ जो है रेस्ट करती है. Question number 4. What does the poet want us to do at night? Poet क्या चाहता है, हमें क्या करने के लिए कहता है रात को? Answer. The poet wants us to think about our friends at night. जो पोएट है वो हमें रात के समय अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचने के लिए कहते हैं. Are these sentences true or false? B. The poet says that stars will always shine at night. True. The poet tells the child to think of friends after it is dark. True. हाँ, कहा था. Word building. Moon प्लस लाइट, इसमें प्लस डाल के दी गई है दो वर्ड को. आपको एक साथ मिला के इसको क्या करना है, ऐड कर देना है और वन वर्ड बना देना है. जैसे कि मून प्लस लाइट, मून लाइट. गुड प्लस नाइट, गुड नाइट. वाटर प्लस फॉल, वाटर फॉल. ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेक फास्ट. डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक. रेन प्लस बो, रेनबो. तो इस तरह से हमें नया वर्ड बनाना है. Find a word in the poem which is the opposite of war. अभी हमें कुछ opposite words लिखने हैं. जैसे कि war, opposite of war is peace. War यानी कि बहुत बड़ा, जब दो देश के बीच में या बड़ा, थोड़ा सा बड़ा जब झगड़ा छिड़ जाता है कोई भी. और पीस, पीस यानी कि जब शांति छा जाती है. एनिमीज, फ्रेंड्स. एनिमीज यानी कि दुश्मन, उसका अपोजिट फ्रेंड्स. जेंटल, हार्श. जेंटल बहुत सॉफ्ट होती है और हार्श जो बहुत रूड होता है. लाइट, डार्क. नाइट, डे. स्टार्ट, सीज. स्टार्ट करना और सीज कर देना, बंद कर देना. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. Don't, won't. Here are their full forms. ये हमें don't, won't ये शॉर्ट फॉर्म में मिली है. अब इसका फुल फॉर्म कैसे होता है? Do not. Won't यानी कि will not. इसी तरह से now write the full forms of the following words. Didn't, shouldn't, wouldn't, couldn't, mustn't, must not. Like didn't, did not. Shouldn't, should not. Wouldn't, would not. Couldn't, could not. Mustn't, must not. Stop. Number 1. Are you afraid of the dark? Why? क्या आप डरते हैं अंधेरे से और क्यों? तो ये आंसर तो आपके खुद का अलग अलग होगा, but I am giving you one sample answer. Yes, I am afraid of the dark because I see strange kind of images in the dark. और वैसे भी डार्क के लिए हमारे मन में थोड़ा सा डर बैठा ही रहता है. Then what do you do when it is dark? आप लोग क्या करते हैं जब डार्क हो जाती है? Answer. I start listening to music when it is dark. कभी जब करंट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है, अगर इन्वर्टर भी खराब हो तो क्या करते हैं हम लोग? म्यूजिक चला के बैठ सकते हैं. Number 3. Have you ever been very frightened? Tell your partner about it. इन तीनों क्वेश्चंस को ही आपको बात करनी है. बात करने के लिए फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, किसी के साथ भी खूब बढ़ा चढ़ा के इन क्वेश्चंस के ऊपर बात कीजिए. Answer. Yes, I once got frightened with the sound of a kitten who was hiding under my bed in the dark. हाँ, मैं एक बार डर गई थी जब मेरे बेड के नीचे एक बिल्ली का बच्चा जो है वो छुपा हुआ था और अचानक से आवाज लगा दी. Now say aloud. अभी जोर जोर से थोड़ा कहने के लिए कहा गया है. What is the word that starts with T, rhymes with sees and means to playful make fun of? एक वर्ड है जो कि T से स्टार्ट होता है और ये राइमिंग वर्ड है किसका? sees का. And means to playfully make fun of. और इसका जो वर्ड आएगा T से उसका मीनिंग होगा कि playfully make fun of. हम लोग बहुत ही फन कर सकते हैं. टीज के साथ राइमिंग भी होनी है तो टी से टीज हो सकती है. टी
E-A-S-E, tease. Tease यानी कि playfully we can make fun. And cease means stop. Number 2, what is the word that starts with C? वर्ड जो है वो सी से स्टार्ट होगी, राइम्स विथ नियर, नियर के साथ राइमिंग वर्ड बनेगी, एंड फियर, नियर और फियर का राइमिंग वर्ड बनेगी, एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडर. तो सोचो आप लोग, जो सी से स्टार्ट होगी और नियर और फियर के साथ राइमिंग वर्ड होगा, और इसका मीनिंग क्या होगा? इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड. दैट विल बी क्लियर. क्लियर यानी कि हम लोग को साफ दिख रहा है, CLEAR. क्लियर यानी कि हम साफ देख पा रहे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, हमें समझ आ रहा है क्लियरली. आई कैन हियर क्लियरली. तो मीनिंग भी आ रही है, क्लियर, नियर, फियर, राइमिंग भी हो रही है और सी से भी स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट, से, T. नंबर 3, वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? टी जब हम कहते हैं तो टंग का टिप जो है वो कहाँ टच करती है? फिर से बोल के देखिए, टी टी टी, ऊपर, ऊपर टच करती है. लिसन एंड रिपीट, CAT, कैट. आप लोग इसको सुनिए. कैट जब हम बोलते हैं, ट साउंड लास्ट में आ रही है, मैट, MAT, मैट, ट साउंड लास्ट में आ रही है. कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिसपे टी साउंड लास्ट में आती है? और आप फिर अपने मुंह से साउंड में बोल के भी देखिए. नंबर 5, डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड? आपका टंग जो है क्या करता है? आपको सुनाई देती है उसके बारे में? हमारी टंग जो है वो ऊपर नीचे होती है और हमें क्या सुनाई देता? आवाज तो कुछ नहीं निकलती. आप लोग खुद का सुन के देखिए. नंबर 6, say these words and feel what your tongue does when you say. इन वर्ड्स को बोलते हुए आप लोग देखिए, आप लोग फील कीजिए कि आपका टंग इन वर्ड्स को बोलते हुए क्या करता है. जैसे कि टो, टॉप, टाई, 10, work in pairs, make the cuff sound, I came down, I cuffed, KKK, and cuff again, KKK. Did you hear the K sound at the end of the word book? जब हम book कह रहे हैं उसमें K sound आ रही है क्या? Book, yes, आ रही है. Repeat, book, look, neck, duck, chick, sack, clock. All these words start with the same sound. ये जितने भी word है, जैसे कि कंगारू, क से साउंड हो रही है, कर्टेन, क से यानी कि K से साउंड हो रही है, किंग, किंग भी K से स्टार्ट हो रही है, की, काइंड, किटन. ये 6 वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे ही जब सी से लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी हम कर्टेन, के ही कह रहे हैं. Isn't it? तो आप इसको खूब जोर जोर से पढ़िए. टीम टाइम, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन. अब आपको ये टीम में करने के लिए दी गई है कि एक रूम अंधेरा कर लीजिए और देखिए अगर दिन रात अंधेरे में रहते हैं तो क्या होता है. नंबर 3, what are the things that may happen if there is no sunlight? अगर कोई सनलाइट ना हो तो what may happen? If there is no sunlight, there would be darkness everywhere. If there is no sunlight, we would not be able to see anything. If there is no sunlight, there would no food for us. Why? Because in the presence of sunlight, with the help of air and water, plants do the process of photosynthesis. उस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट अपना फूड तैयार करता है. अगर सनलाइट ही नहीं रहेगी तो प्लांट्स फूड तैयार नहीं कर पाएगी. That's right. The red tea cups are filled with a particular word. Fill in the yellow teacups with similar sounding words. Note the example given. TWO, TWO. दोनों का साउंड सिमिलर है. ONE, one, WON, won, one. The golden deer was very dear to him. Dear, dear. Deer means बहुत प्यारा. DEER means हरिण. Ramu's son loved to play in the sun. Sun, SON, sun भी sun ही होता है. So one, won, dear,
सेम साउंड निकलता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट। सन, सन, SON सन यानी कि बेटा, SUN सन यानी कि सन। सो आपको पता है चलना पड़ेगा कि कौन सा स्पेलिंग वाला वर्ड कहाँ पे हमें पुट करना है। Now complete the following sentences choosing the right word. The sum was dash. 2 words दिए गए हैं, इनमें से right word को हमें fill up करना है। The sum was dash difficult for the class to solve. The sum was जो भी problem था that was too difficult. TOO2. Only dash students could do it. सिर्फ दो नहीं किया, that means TWO2. Okay, pronunciation is same but words are different. TOO2 means बहुत and TWO2 means only though. There was only dash boy who dashed the prize. There was only one boy who won the prize. The golden deer was very dear to him. Ramu's dash loved to play in the sun. Ramu's son loved to play in the sun. Now let's listen. Relax your feet, legs and entire body. Be as quiet as you can. Listen to the sounds around you. बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप अपने आसपास आंखें बंद करके आप अपने आसपास के साउंड्स को सुनिए। Tell your partner softly what you heard and asked, what did you hear? आपने क्या सुना अपने फ्रेंड को बताइए जो भी आपके साथ बैठा हुआ था उस समय, और उन्होंने क्या सुना वो भी कहने के लिए बोलिए। Let your partner talk about or copy those sounds. अभी आपका पार्टनर जो भी है अपने मम्मी पापा के साथ भी आप कर सकते हैं, उन्होंने क्या सुना इसके बारे में भी बोलिए। Read out the following phrase aloud. Divide them into loud and softer sounds. Clapping hands. Clapping hands जो है loud sound है। A worm moving, जब एक कीड़ा मूव करती है तो softer sound है जो हमें सुनाई भी नहीं देती है। Stamping feet, this is loud sound. Bud blooming, जब एक कली जो है खिलता है तो उसका कोई साउंड हमें नहीं आती है। A butterfly flying, softer sound. A feather dropping, जब एक पंख गिरती है तो softer sound. An ant walking, softer sound. A car moving, loud sound. The wind blowing, softer sound. Shh, softer sound. Whisper, softer sound. A leaf falling is also a softer sound, जो साउंड हमें अच्छी लगती है सुनने में। Let's sing. Okay, let's sing this poem. Don't give up. किसी भी काम को हमें give up नहीं करनी चाहिए। Means we should try and try again and again. We should not give up. If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Life में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अगर आप हमेशा ही चलते जाते हैं, कोई बात नहीं अगर कभी आपके मार्क्स थोड़े से कम आ गए, बट इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन उसमें भी आपका मार्क्स बढ़ सकता है एंड यू कैन रीच टू द टॉप। यही बताया गया है। जब एक चींटी खाने का सामान लेके ऊपर को चढ़ती है दीवार में, आप देखिए वो 10 बार गिरती है लेकिन वो हार नहीं मानती, फिर खाने को उठाती है, फिर चढ़ती है। तो आप लोग भी इसी तरह से हमेशा मेहनत करते रहिए एंड आप लोगों का क्या होगा कि एक ना एक दिन आप भी शिखर तक पहुंच जाएंगे। So why do you think the boy is happy? Because he has reached the top of the mountain. क्योंकि वो बिल्कुल टॉप में पहुंच गया है। There is a boy in the picture standing on the top of the mountain. The boy is happy because he has finally climbed the top of the mountain without giving up on his efforts. उसने हार नहीं मानकर बिल्कुल टॉप तक चढ़ाई कर ली थी। So try to learn this also and keep trying. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? Please put a like on my video and you can share my video with your friends. And don't forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel and stay at home. Be happy and keep learning with me. Thank you.